you can see this website. So this is a simple portfolio of any user. Just an example. So Okay. now we are going to create this portfolio using only the HTML and CSS. Okay, the tags we learned in the previous topic and the styling. So we are Okay. going to design this page using those tags. Okay. So, ma'am, is this going to be like how you design pages in Facebook? This portfolio is something like your digital resume. Oh, it's like a resume CV. Okay, portfolio. Okay, okay, Yes. okay, 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 okay. Portfolio of users. So I'm going to create a sample of any portfolio website. Now you have the task that using these, whatever I'm going to teach you in this lecture, you have to make a portfolio of using your contents Okay, and topics. Okay. great, ma'am. Great. Okay, Okay. So let's give just a demo of this portfolio that what we are going to do in this project. Okay. okay, So you can see that this is, as I told you, whenever we are going to create any website or page, so we will divide our content into some sections. Okay. okay, okay, Yeah. So you can see that the outline of this blue header, you can see this is the top of your website. So header is always designed as a top content of your site. So we will design this part into the header tag. Okay. that I okay, Now, in the after that, scroll down this page, you can see there are some content. So this is the main content जो कि हम क्या करें अपने वेबसाइट के अंदर जो भी डालेंगे ये सारा हमारा आएगा मेन टैग के अंदर. Okay. okay, And after that, these content will be further divided into different sections also. Okay. And now you can see that in this navbar, I have added some about section-wise topics here about projects and skills. So if we yes, click on these sections, so it will be redirecting those sections using this link. Okay. okay, So okay, we don't need to scroll down this. So using the HREF tags, which I have told you that the tag we are using to link our section. So these are the tags we can fetch through the ID. Okay, so we're going to click on the contact. So it will be fetch it, we'll get to the contact. Learning the skills. So this is the skills section. And one more thing we are going to design this website is that is the responsiveness. So responsive media query is something like that. We are going to design a page into the laptop system. Now, if you are if you want to check this page into the same phone into your phone or some other kind of devices their screen size is different, so that will not affect your code by your design. If you check out, like this is a extension of Chrome, I will tell you that which extension. If you check on this, if you check on this mobile simulator, you can see that your website is fully responsive. No, there is no code will be. okay, ठीक है, yes, So we will fetch this code by using the media query. Okay. okay, So okay, this is the just a outline of your project. What we are going to do today. Okay. So okay, let's start with creating a project. Okay. okay, So first, as I already earlier told you that how to open a file in our in VS Code. Okay, so there is no need. So in the simple same classroom folder, I'm going to click on this new folder, and okay, here, yeah, I will type anything which you want to give the name of your project. Okay, okay, so let's type. Now inside this folder, we will create two files. One is your HTML, and another one is your style file. Okay. portfolio style, okay, okay, Inside the portfolio, we will create two files. First one is HTML and another one is your style. okay, Now come to this. So, whenever we are going to create any page, first we need to define some boilerplate code which is using this AMET abbreviation. Okay. So just click this and
exclamation mark by clicking enter. So it will download this boilerplate code. Okay. So now your HTML is intact. Next is we will go to define our first is header. सबसे पहले हमें header बनाना है. Now in the अच्छा header, yes. So in the header, yes. मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा। पहले हम वर्चुअल स्टूडियो में गए, फिर हम न्यू फाइल में गए, फिर हम पोर्टफोलियो हमने नया क्रिएट किया, और उसमें दो चीजें और क्रिएट की, एक इंडेक्स एचटीएमएल और दूसरा आपका ये स्टाइल, राइट? Yes. ठीक है, ठीक है। अब इस पेज में हमें जो सबसे पहला जो टैग दिखा था वो हमारा हेडर था, तो हेडर के अंदर हम बनाएंगे अपना नैव बार। अब ये देखो सेम टैग्स यूज करने का यही ये एडवांटेज है कि जब आप इस पेज को हम जब लाइव करते हैं तो हम बताया बेसिकली ये क्रोम इंजन को हेल्प करता है रीड करने के लिए कि आपके जो टैग्स और एलिमेंट यूज किए हैं वो किस बारे में है। ठीक है। मैम नहीं समझ में आया, फिर से बोलो, नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने ये? हम जो कंटेंट अपने टैग्स के अंदर लिखते हैं उनको स्पेसिफिकली उन्हीं टैग में जो हेडर को आप हेड में ही डिफाइन कर रहे हो, यूएल को लिस्ट में ही डिफाइन कर रहे हो, ये चीजें आपकी बेसिकली क्रोम इंजन को हेल्प करती है आपके पेज के कंटेंट को रीड करने में। ठीक है, गॉट इट, ठीक है। ओके। नाउ ये जो एक सेकंड, तो अगर आप ये हेडर देख रहे हो तो हम इसको क्या बोलते हैं नैव बार। तो हम इसको नैव बार को हम अपने नैव टैग के अंदर ही लिखेंगे जिससे कि आपके क्रोम बार इंजन को पता चल जाए कि ये एक नेविगेशन बार है। आपका नेविगेशन बार है बेसिकली आपको डिफरेंट सेक्शंस पे रिडायरेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके। ओके। आपके वेबसाइट में अगर कई सारे पेजेस है तो आप उनको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। सो हेडर के अंदर हमेशा वो कंटेंट आता है। अब ये जो है एक लिस्ट की फॉर्म है, वहां पे हमने लिस्ट बनाई थी, तो हम इसको अब देखो कि स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले आपके दिमाग में भी वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर आपके दो आइटम्स प्लेस है। अभी हम इसको देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ओके। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। तो इन दो आइटम्स को हम इसी तरह से डिवाइड करते हैं। ओके। तो फर्स्ट हो गया हमारा नेम था जो, और दूसरी साइड है हमारी लिस्ट। अब इसके अंदर जो भी लिस्ट हम उनका नाम डाल देंगे। प्रोजेक्ट्स, अच्छा, तो जो ये वैसे लिखा था वो हमने यहाँ नीचे ठीक है, समझ गया मैं, आ गया। ये सिंपल एक बस पेज। अभी इसमें जो लेआउट आपको दिख रहा है वो लेआउट अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यस यस। अभी इसको, यस, अभी इसको कुछ भी विजिबल नहीं। अभी ये सिर्फ आपको नॉर्मल दो कंटेंट दिख रहा है। अब इसको क्या है, हमें एक रॉ में फिक्स करना है। ओके। कि इसके लिए क्या है, देखो अब हमें क्या करना है, नैव बार जो है हमारा, हम्म। ये हमारा मेन बॉक्स है। ठीक है। जिसके ओके। अंदर के आइटम्स को हमें क्या है मॉडिफाई करना है। जिसको हम डालते हैं क्लास, क्लास में यूज करके हम इसको स्टाइल्स की हेल्प से यूज करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। ओके। सबसे पहले हम स्टाइल के लिए यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी लिंक, अपनी स्टाइल फाइल को लिंक कर लेते हैं CSS की हेल्प से। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी लोकेशन है हम्म। फोल्डर की, ये जो स्टाइल फोल्डर की है ये पोर्टफोलियो के अंदर है। तो हमें क्या है सेम उसी वे में यहाँ पे डालना है। ओके। जो मेरा पोर्टफोलियो वाली फाइल है वो सैंपल फोल्डर के अंदर गई। यहाँ पे लोकेशन भी आपकी सेम होनी चाहिए। सैंपल के अंदर आपका पोर्टफोलियो है और हम्म। उसके बाद मेरी स्टाइल डॉट सी है। ये लोकेशन आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है। ना अब हम स्टाइल के अंदर आएंगे, के अंदर हमें डिजाइन करना है लैब। तो अब इसको देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स।
अब ये क्या है, उसको एक रो में फिट कर दिया। उसके बाद जो हमारे आइटम्स है उनको हमें क्या करना है, जो दोनों के बीच में स्पेस है, हम्म। ताकि लेफ्ट और राइट को एडजस्ट। राइट आइटम जो है इसको वर्टिकली फिट ओके। कर देगा। इसको सेव करना है बस। ओके। अब देखो ये आपका जो है एफ बार था, हमने भी उसको क्या है, ये दोनों आपके एक रो में आ गए और ये अपनी अपनी पोजीशन पे चले गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। हाँ, अब जो ये हेडर था हम इसको स्टाइल कर देंगे। ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो हमने यूज किया था। जो हेडर के अंदर जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर आपका बैकग्राउंड का है, और जो कलर यूज कर रहे हैं वो जो हेडर के अंदर जो टेक्स्ट होगा उस प्रॉपर्टी उसका कलर चेंज करेगा। ओके, ओके। इसमें पैडिंग दे देते हैं जो हेडर के अंदर से स्पेस ले। ओके, अब ये पैडिंग 20 पिक्सल का मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों साइड से ये आपकी 20 पिक्सल हेडिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब हमें इस लिस्ट करिए, इस लिस्ट को भी फॉर्मेट करना है। ये हम अपनी क्लास पे आते हैं और अब लिस्ट को करते हैं। तो जो हमारी लिस्ट थी वो किसके अंदर थी, नैब बार के अंदर। तो पहले हमने लिखा नैब, उसके बाद यूएल। अब ये तरीका मैंने बताया था ना हम किस लिए यूज करते हैं, नैब के साथ हमने यूएल क्यों यूज किया है। उसकी की हॉरिजॉन्टल लेंगे कि वर्टिकल लेंगे उसके लिए, राइट? तो ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की, हेडर को मैंने सिंगल डिजाइन किया, तो सिंगल हेडर के साथ ही नैब बार को सिंगल एलिमेंट लेके मैं डिजाइन कर रही हूँ। बट यूएल इसके लिए मैंने साथ में नैब बार भी यहाँ पे लगाया है। अच्छा। ओके। तो दिस इज या ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट के अंदर की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो, सिर्फ किसी एलिमेंट के टैग को, हम क्या है उसके साथ उसका सिलेक्ट भी लिख देते हैं। तो यहाँ ओके। पे जो हमारा यूएल है, ये ध्यान देखना यूएल नेस्टेड है, आपके लेफ्ट टैग के अंदर है। जिससे कि अगर मैं यूएल को डिजाइन कर, अगर यूएल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उससे सिर्फ वो मेरे नैव बार में जो यूएल लिस्ट है सिर्फ वो स्टाइल चेंज हो, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने क्या यूज किया, उसके आगे नैव बार लगाया। ओके। ठीक, ठीक है। अब इसको हमें इसको भी यूज करते हैं हम ये डिस्प्ले करते हैं। इसका जो जस्टिफाइड इस नेक्स्ट रैप, अभी फ्लेक्स रैप जो हमने यूज किया है, तो जब हमारा जो डिवाइस की जो स्क्रीन है वो छोटी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कंटेंट बाहर जा रहा है तो ये क्या है, अपने आप इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर। ठीक है, ओके। स्टाइल दे देते हैं, चलो कोई स्टाइल नहीं चाहिए। लाइन जो उसकी बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं ये उसको भी रिमूव कर। ओके। ये हो गया, अभी इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। नेक्स्ट डायरेक्शन दो। चलो। यस। अब ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाली डायरेक्शन है, इसको हमें लगाना है नैव यूएल के अंदर। एक चीज है,
ना कई बार। तो जब हमारा अलाइन आइटम बीच के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अब जो हमने यहाँ पे यूएल के साथ लिस्ट यूज किया था ना, तो ये क्या है, यूएल के अंदर जितनी भी लिस्ट थी उन सब पे वो प्रॉपर्टी ऐड हो रही थी। ओके, ठीक है। ठीक है। और ये जो यूएल टैग है वो देखा होगा आपने, नेस्टेड है सारे लिस्ट को एक उसमें सारे लिस्ट को एक साथ ऐड कर रहा है, ये वाला जो यूएल है। तो हमें क्या था, हमें इस वाले बॉक्स की डायरेक्शन की के आइटम्स को चेंज करना था। इसलिए हमने अपना जो डिस्प्ले फ्लैग है वो किसके अंदर लगाया, यूएल के अंदर। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम। राजीव, इज इट क्लियर? मैम मैं देख रहा हूँ, लेकिन आई विल, अभी समझ में आ रहा है वंस ओवर। देखो, यही चीज, ये चीज पता है आप, इसलिए मैं पता है यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इसलिए करवा रही हूँ कि ये चीज कभी भी ऐसे क्लियर नहीं होती यूजर को कि उसको खुद से पता चल जाए कि फर्स्ट टाइम पे मुझे किस में डिस्प्ले फ्लैग्स और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसलिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप हमेशा जो भी पेज बना रहे हो उसको सॉरी यार। आपके दिमाग में जो भी डिजाइन है आप उसको कोड पे वैसे ही, ठीक है। उसके बाद राइट। आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है अपना कोड। आप जैसे इंस्पेक्ट करने, yes, अ, जरा पीछे ब्लैक वाले पेज चाहिए, मैं बताता हूँ कि मैंने आपने क्या किया, मैं क्या सोच रहा हूँ। कैन यू गो टू द प्रीवियस पेज में? क्या? जो पुराना पेज था, विजुअल विजुअल स्टूडियो वाला, कैन यू गो देयर प्लीज? यस यस यस, या अब देखिए मैम, आपने यहाँ पर डिस्प्ले में फ्लेक्स लिखा हुआ है एंड अलाइन आइटम्स में सेंटर लिखा हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सब सेंटर में आ रहा है, राइट? अब मैं जो बनाऊंगा, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मैं अपना कंटेंट जो है लेफ्ट साइड में रखूं। एग्जांपल दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड में एक कंटेंट ऐसा बनाऊंगा जिसको मैं राइट साइड में रखूं। तो मैं देखता हूँ मैं वैसा कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं वैसा कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। यस। तो राइट। देखो अब, यस, लेकिन अब आप उसको चेंजेस कैसे करोगे, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करोगे ना तो आपको समझने में कंफ्यूजन होगी। मैं वही बता रही हूँ आपको, जो भी पोजीशन याद है ना आप उस पोजीशन को पहले यहाँ पे लिख लो, ठीक है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है। अब आपको अपनी वो आपके पेज पे वो किस साइड शिफ्ट करना है, या लेफ्ट में, सेंटर में, या वो टॉप में होना चाहिए या बॉटम में, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे आना है, हम्म। आपको अपने पेज पे आना है और प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके, कंट्रोल। कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो आपका ये वाला जो कंसोल है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंसोल, सॉरी, एलिमेंट्स पे जाना है आपको। हाँ। ओके। एलिमेंट्स पे आके अब आपको जो भी एलिमेंट डिजाइन करना है उसको सेलेक्ट हाँ। कर लेना चाहिए। अभी देखो हम हेडर टैग के अंदर थे, हेडर ये राइट। जो थ्री डॉट्स दिख रही है आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके अंदर का जो भी कोड है वो सारा ओपन होता जाएगा। यस मैम, यस मैम, अब दिख रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर सपोज आपको ट्यूबवेल की डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, या जिस भी बॉक्स की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आप यहाँ से इसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको किस साइड रखना है। अब मैं जस्टिफाई, ये जो कंटेंट मैंने स्पेस बिटवीन रखा था, यहाँ हम्म। पे देखो ये आपको सजेशन जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है जस्टिफाई कंटेंट की वो ऑलरेडी मिल जाएगी। जहां से अगर आप चेक करोगे तो वो आपको विजुअलाइज भी होगा और आपको कौन सा एलिमेंट किस वे में काम करता है वो भी आपको चल जाएगा। जैसे आपको चल रहा है कि सेंटर में करने से जो आपका कंटेंट है वो सेंटर पे आ जाएगा, एंड पे करना जैसे ही अभी आपने सेलेक्ट भी नहीं किया वो पहले ही बता दे रहा है, तो एंड पे चला गया। ठीक है, हम्म। स्टार्ट। तो ये चीज आपको क्या कहती है, आपको एक विजुअलाइजेशन हेल्प देती है कि आपका जो कोड है वो कैसे दिखने वाला है, और दूसरा ये आपको प्रॉपर्टीज याद करने में भी हेल्प करता है। हम्म। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके माइंड को सीधा दिख रहा है कि ठीक है, स्टार्ट में जैसे क्लिक किया वो आपको यहाँ पे दिखेगा, एंड जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आपके माइंड ने समझ लिया। राइट। ठीक है। ये तो ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, हम कोई भी इसमें चूज कर सकते हैं, राइट?
इसमें कोई से भी आप चूज कर सकते हो। और ये सिर्फ जो है ये अपने आप में बहुत ही लार्ज लाइब्रेरी, ठीक है। ओके। इसको आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपको उतनी नई चीजें मिलेंगी। ठीक है। ओके। ठीक है, तो इसको अगर सेम को, और उसके बाद आपने जो भी चेंजेस किए, लेकिन उसको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आपको जब तक ही दिखेंगे जब तक आपका ये पेज यहाँ से रिफ्रेश नहीं हो जाता। तो उसको आपको अगर अपने प्रोजेक्ट में करना है तो यहाँ से कॉपी करके अपने फाइल में सेव जरूर करना होगा। अच्छा, जो यहाँ पे किया उसको कॉपी करके विजुअल स्टूडियो में सेव करना है, राइट? हाँ, उसमें सेव करना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि यहाँ पे कर दिया वो चेंजेस हो गए, तो वो चेंज नहीं है, वो सिर्फ आपको कुछ सेकंड के लिए दिखता है, उसके बाद जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा वो कोड आपका फिर से ठीक है। वापस सेव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। मतलब यहाँ चेंजेस करेंगे और वहां उधर जाके सेव करेंगे, तब यहाँ पे सेव हो। बेसिकली इसका नाम ही इम्पैक्ट इसलिए है कि ये आपके कोड को आपको समझने के लिए है, इसमें क्या राइट। दिक्कत है क्या एरर है, ओके, इसीलिए ये हमको यूज मतलब मैम एक एडिट टूल होता है टेलीविजन में और फिल्म्स में, एफसीपी, फाइनल कट प्रो। उसमें भी ऐसे ही होता है, आपको जाके सेव करना पड़ता है दूसरे उसमें, तभी वो होता है। मैं समझ गया, ये उस तरह का ही है। समझ गया मैं। करते ठीक है। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब ये चेंज हो गया, अब सपोज मुझे इसका कलर भी चेंज करना है यहाँ से, तो सिंपली अब आपको कौन से, आप सारे कलर कोड यूज नहीं कर सकते ना, तो वो सिंपली आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन सा मेरे प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। यहाँ से मैंने कलर यूज किया, मुझे चेंज करना था, मैंने इसको कॉपी किया और अपने फाइल में जाके, अब ये ध्यान रखना किस एलिमेंट पे मैं चेंज कर रही हूँ। मैंने हेडर पे चेंज किया तो मैं इसका कोड हेडर पे ही पेस्ट करूंगी। ओके। ओके। और कलर चेंज हो गया फाइल, अब चाहे मैं तो कितना भी पेज रिफ्रेश कर लूँ ये कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वहां से चेंज करके और यहाँ से मैंने पेज रीलोड कर दिया होता तो चेंज हो जाता, जो मैंने फाइल में कोड लिखा था ये वही इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा आपको, ओके। ठीक है। तो हमारा हेडर हो चुका है। अब बात करते हैं, अच्छा जो बॉडी टैग है उसको भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। कुछ नहीं, जो मार्जिन है, हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा हमारे पेज में कोई मार्जिन पैडिंग ना हो, जो हम डालें वही, तो इसलिए हम यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग 0। ठीक है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपके जो पेज है उन सबका फॉन्ट एक जैसा हो, उसके लिए हम्म। क्या है, हम फॉन्ट फैमिली बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे, तो हम्म। बॉडी के अंदर ही हम जितना भी कंटेंट है एचटीएमएल का वो किसके अंदर डालने वाले हैं, बॉडी के अंदर, ठीक है। ये। तो जो भी एलिमेंट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट, जितने भी हमारा जो एचटीएमएल पेज होगा सबका फॉन्ट आपको सेम मिलेगा। तो अब ये तो आपको स्पेसिफिक फॉन्ट दिखता है, अगर आप चाहते हो कोई नया फॉन्ट यूज करना है पर बाहर की लाइब्रेरी का, उसको हम इंपोर्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। एचटीएमएल के पास भी अपने फॉन्ट्स होते हैं प्रेजेंट, लेकिन अगर हमें कोई अलग से लाइब्रेरी यूज करनी है अपने फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिलीज में, तो हम उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। सपोज मैं गूगल फॉन्ट्स की यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको इसको गए यहाँ पे गेट फॉन्ट, और उसके बाद जाना है गेट एम्बेडेड फॉन्ट। मिनट कोड, ठीक है। ओके। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूजिंग द लिंक और इम्पोर्ट। इम्पोर्ट को हम यूज करते हैं अपने साइड शीट के अंदर, और जो लिंक है आपका वो एचटीएमएल के अंदर भी। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने जो लिंक है वो एचटीएमएल फाइल के अंदर आपका यूज होगा। अगर ये दो ऑप्शन है, दोनों को तरीके से हम फॉन्ट स्टाइल अपना ये कवर कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक अपने है। फाइल के अंदर ये स्टाइल। अब इम्पोर्ट अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, तो कॉपी करना है और अपने स्टाइल फाइल के अंदर पेस्ट, ठीक है। ये स्टाइल टैग नहीं चाहिए, ये आपका यहाँ पे हम डालते हैं फॉन्ट फैमिली,
आ जाते वापस अपने आप देखो आपका फोन चेंज हो चुका है। ओके। ये आपकी थी दूसरी लाइब्रेरी। अब ऐसे ही अगर आपको कोई अलग से लाइब्रेरी जिसका भी फॉन्ट सही दिखता है तो उसका आप मतलब मेनली गूगल होता है, एक आपका फॉन्ट ऑसम होता है, उसमें दिखाइए कि यूआरएल को यहाँ पे अपने साइड टैग के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो और फिर जो भी आपने फॉन्ट यूज किया है वो आपको यहाँ पे इंजेक्ट करना है। ठीक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट अपना पेज का टाइटल चेंज कर दो। लिंक लगा लेते हैं टैब आइकन अपना। लिंक स्टाइल। ये जो आइकन दिख रहा है हमारे यहाँ पे हमें वेब आइकन इसको चेंज कर पोर्टफोलियो के लिए जो इमेज डाउनलोड करते हैं उसका एड्रेस ओके एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ओके। और ये जो एचआरए तो अब ये चेंज होगा। ठीक है। अब ये जो लिंक है जो क्लिकेबल है अब इन्हें हमें इसको अपने सेक्शन के हिसाब से लिंक करना है लिस्ट को अपनी। इसके लिए लिस्ट लिंक होती है सिंपल सी लिस्ट। इसको मैं बनाऊंगी। अब मैंने इसको लिखा है ये जो ए है ये आपका एंकर टैग होता है। ठीक है। तो अगर आपको अपने पेज के अंदर कोई भी लिंक इंडिकेट करना है या कोई भी वेबसाइट इंडिकेट करिए वो हमेशा किसके अंदर है एंकर टैग के अंदर लिखी जाती है। ठीक ओके। है। अब जहाँ पे एचआरएफ है ये उसका पाथ हो गया। अब जब मैं अबाउट वाला सेक्शन बनाऊंगी तो ये जो मैंने हाँ पाथ दिया है अबाउट इस सेक्शन ओके को मैं ये सेम आईडी दूंगी जिसकी हेल्प से जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी तो ये क्या है मुझे उस सेक्शन पे रिडायरेक्ट करेगा। ओके। मैम ये एंकर टैग क्या बताया आपने? एंकर टैग क्या होता है? उसमें सारा वेबसाइट आपको के अपने बारे में। हाँ फाइल में कोई भी लिंक लगाना है अच्छा कोई भी लिंक अपने पेज के अंदर इंडिकेट करना है तो उसको हम किसमें टैग करते हैं एंकर टैग के ओके। अंदर। तो यहाँ पे ये जो अबाउट सेक्शन ये अबाउट है ये आपके अबाउट सेक्शन के साथ लिंक होगा। हाँ ये जो बेसिकली अबाउट है तो ये क्या है इसके जैसे ही हम क्लिक करेंगे मैं चाहूंगी कि मेरा अबाउट कंटेंट कहीं भी हो इस पे क्लिक करने के बाद वो टॉप पे आ जाए। जी। तो ये क्या है बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं हम एक सेक्शन को कंटेंट ओके। सेम जिस वे में हमने ये यूज किया था अबाउट उसी तरह से बाकी सबको भी यूज कर लेंगे। अभी इन सबकी ये लोकेशन भी चेंज होनी चाहिए।
skills. Okay. Contacts. अब हेडर के बाद आता है हमारा मेन कंटेंट, जिसके अंदर जो हम अपना पेज बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला सेक्शन कौन सा है, अबाउट। हम एक सेक्शन बनाएंगे। ये Yes. आपकी ये सारी जो भी एलिमेंट्स है, हेडर मेन सेक्शन, ये आपके सेमेंटिक टैग्स होते हैं। जी. ओके। अब इस सेक्शन को हम लेंगे आईडी। अब ये आईडी वही सेम होगी जो सेम आईडी नेम जो हमने यहाँ पे पास दिया है। ओके. ये सेम होना चाहिए, तभी वो क्लिक होके उस पे जाएगा। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट डालते हैं, जो इसकी हेडिंग। दूसरा हो गया हमारा, अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक डिव सेक्शन। डिव हो गया कि आपका एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर अभी हम दो एलिमेंट्स लेंगे, एक साइड हमारी फोटो होगी, दूसरी साइड इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो, ठीक है। ओके. एक बार हम लेआउट देख लेते हैं, कौन सा लेआउट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है हमारे से ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, दो कॉलम दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, और जो हेडिंग है वो आपका इसी राइट साइड में है, ठीक है। ठीक है. अब इसको डालेंगे, इसको को भी हमने यहाँ से है, और इसको डाल देंगे हम डिव टैग के अंदर। दूसरा क्या है हमारे पास, इमेज, ठीक है। तो ये जो ऐसा हमने ये डाला, और यहाँ पे जो भी आपकी पास इमेज है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपकी यहाँ आपके पास डाउनलोडेड इमेज है तो आपको अपने फाइल के अंदर वो इमेज पहले लानी है, और उसके बाद उसका पाथ देना है। और अगर नहीं है तो हम सिंपल सा गूगल से कोई इमेज कॉपी एडजस्ट कर लेते इमेज कर ले. ठीक है. ठीक है. हैं, हम इसी इमेज को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने check किया इसको। एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, और एक और डिव लेंगे, इसके अंदर हमारा होगा HT अबाउट, और दूसरा पैराग्राफ, जो इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं। ओके. ये जो लॉरेम आपका होता है, ये बेसिकली आपको एक सैंपल टेक्स्ट जनरेट करके देता है, जो भी लैटिन वर्ड में होता है। सेव नहीं हुआ, सेव ऑल किया। अभी देखो ये नॉर्मल से आपकी इमेज और ये आ गई। अब इस लेआउट को यूज करना है हमें कैसे, सेम इसी फॉर्मेट में। तो ये ध्यान रखने के लिए कि आपका ये वाला जो कंटेंट है ये दोनों इस फॉर्म में आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसका मेन बॉक्स है हमें उसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना है, ठीक है। ओके. ओके. और अभी इसमें एक चीज नोटिस की होगी आपने, ये जो आपके लिंक्स हैं, ये जो लिंक्स है ये जी. ब्लू कलर के अपने आप हो गए ऑटोमेटिक। हाँ, पहले वाइट थे. हाँ, हमने इसमें कलर चेंज नहीं किया, बट ऑटोमेटिक की जो एंकर टैग है वो उसमें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऐड होती है कलर ब्लू, जो कि ये ओके. हाईलाइट करता है कि आपका लिंक है। अगर आपको ओके. इसको चेंज करना है व्हाइट या जो भी कलर है, तो सिंपल हम स्टाइल शीट में जाके एंकर टैग के अंदर कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा. ठीक है.
अभी हम अबाउट से क्लिक कर रहे हैं, सो इट विल शो आईडी में कुछ देखो, एक सेकंड। ये आईडी है, इसलिए आईडी के साथ हमें, आईडी को हमेशा हम हैश के साथ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल स्लैश फाइल ले देते तो फाइल की लोकेशन बता रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास अबाउट नाम की कोई फाइल नहीं थी, इसलिए ये जब हम पहले क्लिक कर रहे थे, अभी तो मैंने सेव नहीं किया होगा, इसने क्या किया, मुझे स्लैश अबाउट पे भेज दिया। मुझे स्लैश अबाउट नाम की कोई फाइल नहीं मिली, इसलिए इसने क्या एरर दे दिया, मुझे कैन नॉट गेट। ओके ओके। आईडी को हमेशा हैश के साथ इंडिकेट करते हैं। ठीक है। सेव किया। अब अगर आप अबाउट क्लिक करोगे तो उसमें मुझे क्लासरूम के अंदर दूसरी अबाउट फाइल दिया। पोर्टफोलियो, लोकेशन। कई सारी स्टाइल से होने के वजह से ये क्या है, उसको हमारे वाले फाइल पे इंडिकेट कर रहा है। ओके। आपका एरर है, तो उसका नाम ही चेंज कर। तो फाइल से बाहर निकलना, ओके ये HR। खोलने के अंदर हमारा, ठीक है। हम्म।
ये थोड़ा सही काम कर रहा है। लोकेशन लोकेशन है। तो ओके ये जो लोकेशन है ये सेम रखना है, सैंपल पोर्टफोलियो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, सैंपल पोर्टफोलियो हैश अबाउट सेक्शन। ओके ये आईडी यहाँ पे अपडेट हो रही है, एक सेकंड। तो तरीका तो इसका यही होता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीक को देखूंगी, मे बी प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, इस वजह से ये लोकेशन सही नहीं आ रहा। ओके, तो ओके मैं ठीक आपको है बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। बाकी अभी हम दूसरे सेक्शन बना लेते हैं सीरीज में। ओके सेक्शन बनाना मैम सेक्शन से क्या होता है ये जो हम एंकर टैग यूज कर रहे हैं ना, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए, अच्छा ताकि इसमें ये जो हमारा कंटेंट है अलग अलग सेक्शन है ना, अबाउट अलग सेक्शन है, फिजिकल अलग सेक्शन है, उनको कैटेगराइज करने के लिए हम इसी सेक्शन टैग के अंदर यूज करते हैं। ओके, ठीक है तो इसको भी डिजाइन करना था ना, अबाउट से फाइल पे आते हैं, और जो हमारा अबाउट वाला सेक्शन है, अबाउट। डायरेक्शन ड्रॉ एक लेआउट में है, अराउंड कर देते हैं, हेडिंग दे देते हैं, ऑटो में भी चाहिए। इसको भी हम क्लास देंगे इसको डिजाइन करने के लिए। ओके Outputs, और बेस्ड ऑन दिस क्लास देंगे। पेस्ट इमेजेस है, इसकी विड्थ और हाइट देते हैं, क्लास को हमेशा डॉट के साथ देंगे। ओके विड्थ और हाइट दीजिए।
में ब्लॉक, जो भी बॉक्स उसमें fit होगी। तो मैम आपने यहाँ ब्लैक लिखा है, तो वहां पर जो ब्लू था वो दोबारा ब्लैक हो जाएगा वो? नहीं, ब्लॉक आपका होता है जो कंटेनर है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके अंदर वो फिक्स। अच्छा ओके, ठीक है। अंदर का जो है। ये जो सेक्शन वाला कंटेंट है अंदर। जी। यस यस। जो अबाउट में। ओके, सही है। तो इसमें जो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी काम करेगी, कि जो हमने डिव के अंदर प्रॉपर्टी, जो हमारा अबाउट टैग है वो भी इमेज वाले भी टैग के अंदर है। ठीक है तो आपको बाहर करना है ये जो अबाउट टैग है, ठीक है। इस डिव से बाहर निकलना है। हम्म। जिससे अब ये दो एलिमेंट हो गए इसके साथ। अब ये इनकल हो गया है, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब इस इमेज के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड करेंगे, जैसे कि इसका बॉर्डर रेडियस। ठीक है। अब मुझे हल्का सा स्लाइटली 20%। अगर आपको इसको सर्कल बनाना है तो 50% यूज करोगे तो पूरा सर्कल बना देगा, ठीक है, आपकी इमेज के बॉर्डर को। ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि आपको थोड़ा सा शेडो ऐड करना है इसके अंदर। तो इमेज के बीच में हल्का सा वो ऊपर की तरफ दिखे, तो ज्यादा दिख रहा है तो हम थोड़ा सा कम करते हैं। हम्म। ओके, सो इसकी पिक्चर हाँ थोड़ी तो ये जो मैम इसकी। हमने किया, जो हमें शेडो ऐड के लिए दिमाग में ये इमेज चल रहा था, और मैं हाँ इस इमेज पे शेडो ऐड करनी है, और मैं इस इमेज पे अभी मैंने ऐड कर दी है, तो जैसे ठीक वो है। गलत ऐड। हमें क्या करना है, इस इमेज जो हमारा इमेज कंटेनर है उस पे शेडो ऐड करना है। हाँ तो हमने इसके कंटेनर का साइज इसको रिमूव कर यहाँ पे लिखेंगे डॉट इमेजेस इमेज, क्योंकि इमेज वाले डिव के अंदर हमारे पास जो है इमेज है, वो प्रॉपर्टी यहाँ ना आए। अब देखो आपका जो इमेज है इसका रेडियस ये करना है, जिसको अगर आपको कम करना है तो हम सिंपली 20% है, 20 पिक्सल करते हैं, परसेंट हमारा परसेंट का डाटा है। हाँ। और ये जो बॉक्स शेडो था उसको भी कम करते हैं। ये आप एक आपका रहेगा ना, एक लेफ्ट राइट होता है फर्स्ट वाला, दूसरा वाला आपका टॉप बॉटम होता है। हम्म। इमेज थोड़ी मैम ओवर राइड हो गई है टेक्स्ट के ऊपर। क्या? इमेज थोड़ी टेक्स्ट के ऊपर ओवर राइड हो गई है। हाँ, इसको अभी हम सही करेंगे। नहीं ठीक है, वो तो हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप इसको ही सही करिए बस। अच्छा। और ये जो साइज है ये भी बहुत बड़ा है, इसको कलर मुझे बस कॉपी करना है, क्योंकि कलर की प्रॉपर्टी होती है वो याद। तो हमने कितना किया था, 26 ये आपके कंटेनर का साइज है जो हाइट और विड्थ है, और इसकी कंटेनर के अंदर जो हमारी विड्थ है इसको भी देंगे 100%, कि आपकी इमेज कितनी भी हो उस कंटेनर के अंदर ही फिट होगी। ओके।
और अब हमें इसके साथ ये जो था गैप, जो बीच में गैप चाहिए था हमें वो मिल गया। अब ये चीज देखो, आपने एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे अबाउट का मैंने पूरी टेक्स्ट लिख दिया है। इस टेक्स्ट को मुझे हम्म, क्या है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कैपिटल में चाहिए आपको या जो भी है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है ठीक है। हैश, मुझे स्पेसिफिकली अबाउट का ही चेंज करना है, तो मैं अबाउट आईडी लिखूंगी। और अबाउट के अंदर जो हमारा वो एचटी कंटेंट है, यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और इसको देखो, कैपिटलाइज होगा आपका, हर एक लेटर को कैपिटल कर देगा, लोअर केस अगर आपको सबको लोअर केस में लिखना है, और अपर केस होगा जो उसको उस कैपिटलाइज, सॉरी, आपका होता है ना जिसमें फर्स्ट लेटर आपका सब, ओके। और अपर केस पूरे को कैपिटल कर देगा। ये स्पेलिंग गलत है, अबाउट, अबाउट। अब ये देखो, हमने वहां से कंटेंट चेंज नहीं किया, लेकिन स्टाइल ने क्या कर दिया, हमारे कंटेंट को सही कर दिया। ठीक हाँ है, तो जी। ये टेक्स्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी आपकी होती है कि कई बार आपको पता भी जो कंटेंट आया तो आप स्टाइल के थ्रू उसको चेंज कर सकते ओके। हैं। और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है, जो आपका टेक्स्ट अलाइन है, जैसे आप अपने आइटम्स को डिस्प्लेस कर रहे थे, वैसे आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो, उसको सेंटर में रखना है या फिर एंड में, या फिर जस्टिफाई बेसिकली जब होता है जब आपके पास एक बहुत लॉन्ग पैराग्राफ हो, और वो पैराग्राफ आप चाहते हो कि जैसे वर्ड भी यूज करते हैं ना आपने, जस्टिफाई, यस। लेफ्ट राइट, सेम वही यस। प्रॉपर्टी। सेम, हाँ, मैं तेज वही देख रहा हूँ। वही कमांड्स हैं, वही वही रोल है। हाँ, तो ये सिर्फ ये आपका, आप ये समझो सिविल कैसे कि आपकी कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप क्या है अपने पेज बना रहे हो। ओके। अच्छा, कोडिंग के थ्रू हम पेज बना रहे हैं, राइट। यस, यस। हम्म। वहां पे जो हम वर्ड में यूज करते हैं वो ऑलरेडी अच्छे से कोड लिखा हुआ है, ये समझो कि अगर आप कोडिंग लैंग्वेज यूज करके आप खुद का सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हो, और वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से फंक्शन होना चाहिए, उसमें क्या काम करना चाहिए, वो आपके हाथों में है डिसाइड। ओके। मैं तो जो आपने कहा इससे मुझे एक चीज समझ में आई। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ लिखते हैं, तो जो हम लिखते हैं वो हमको दिख रहा होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ वो पर यूजर को, अब ये सॉरी। देखो, वो यूजर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, उनको सिंपल से बटन दे दिए, नेविगेशन दे दिए कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपल सी ये चीजें इंडिकेट हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो है वो भी एक कोडिंग ही है, जो आप जो माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने उसको कोड कर रखा है इन प्रॉपर्टीज के यूज कर। राइट। तो हाँ, राइट, तो जो हम यहाँ कर रहे हैं उससे वो चीज व्यूअर को दिखेगी जो हम यहाँ इस पे कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो हाँ, पे, राइट। यस, यस, यस। तो बेसिकली हम एक फ्रंट एंड जो होता है हमारा, वो यूजर इंटरफेस होता है कि हम यूजर को क्या दिखाना चाहते क्या दिखाना चाहते हैं, राइट, समझ गया ना, ठीक है। गॉट इट मैम। हैं। टेक्स्ट लाइन है स्टार्ट में, जो मेरा आइटम है लेफ्ट साइड ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ये कंप्लीट आज का टाइम हो गया है, सो बेसिकली आपको ये नॉर्मल डिटेल्स तो समझ आई होगी, ठीक है। जी जी जी। अबाउट, अच्छा, इसको ये सेव नहीं हुआ है, स्टाइल बॉर्डर में भी सेव हो गया। तो इतना आप अपना पेज बना सकते हो, अभी तक तो वैसे भी कंटेंट ज्यादा नहीं हुआ, अभी तक मैंने जितना बनाया ना, आपको यही पेज बनाना है सेम अपने बारे यस मैम, ठीक है। मैंने आपसे कहा में। कि इस पेज को, मैं इस पेज को बनाऊंगा मैम, लेकिन मैं हम्म। कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक फॉर्मेट में दिया हुआ है, मैं लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे हर तरह हाँ, से बनाऊंगा। ये चीज यही मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल सेम नहीं बनाना, इसको हाँ। अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। यस मैम, हाँ, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब ये अगर मैंने कर दिया तो मतलब आई थिंक, आई जो हाँ, मेरे 3 4 क्लासेस हुए हैं, मैं समझ गया इसका मतलब। हाँ, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।